Come to the next point, Byzantine Empire or Eastern Roman Empire. The city of Rome was invaded by Vandals in 476 AD. The last Roman emperor Romulus Augustus was removed, and after that there was no emperor in the west. But Eastern Roman Empire, also known as the Byzantine Empire with Constantinople as its capital, survived till 1453 AD. जो वंडाल थे उन्होंने रोम सिटी के ऊपर इन्वेडेड मीन्स आक्रमण कर दिया था। 476 एडी के एंड में जो रोमन सम्राट रोमलस अगस्त को हटा दिया गया और उसके बाद जो वेस्ट में कोई भी किंग नहीं था, लेकिन ईस्ट रोमन एम्पायर को कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ बैस्टाइन एम्पायर के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि इसकी राजधानी 1453 एडी तक बची रही थी। During most of its existence, the empire was the most powerful economic, cultural, and military force in Europe. During the reign of Emperor Justinian I, 527 AD to 565 AD, the empire reached its greatest extent after reconquering much of the Rome's western Mediterranean coast, including North Africa, Italy, Spain. During the reign of Maurice, 582 AD to 602 AD, the empire's eastern frontier was expanded. Underline the word frontier means border area, and Mediterranean means countries bordering area या sea coast. Underline the word existence means presence, अस्तित्व। अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान एम्पायर जो यूरोपियन एम्पायर था वो सबसे पावरफुल इकोनॉमिक, कल्चरल एंड मिलिट्री फोर्स में बहुत शक्तिशाली था। 527 एडी टू 565 एडी के शासनकाल के दौरान तक जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर इटली, स्पेन के सहित रोम के जो वेस्टर्न मेडिटेरियन कोस्ट के अधिकांश एरिया को समेटने के बाद सबसे बड़ी सीमा पर पहुंच गया। फिर उसके बाद मॉरिस 582 एडी से 602 एडी के टाइम पीरियड के दौरान साम्राज्य के ईस्ट सीमा का मतलब कि विस्तार किया गया। Western values and ideals were the foundation of the empire's political ideals, and in that sense it was a theocracy. The Byzantine Emperor Justinian I in 529 AD appointed a 10-man commission to revise the Roman law and create a new codification of laws known as the Justinian Code. क्रिश्चियन वैल्यूज़ एंड आइडल्स जो एम्पायर के राजनीतिक आइडल्स की क्या रखते थे, नींव रखते थे। और इस अर्थ में यह एक थ्योरोक्रेसी था, मीन्स डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक था। 529 ईस्वी में बैस्टाइन जो किंग था जस्टियन ने एक रोम जो
लॉ यानी कानून को लागू करने और जो जस्टिन कोड के रूप में ज्ञात कानूनों का एक नया कोडीकरण किया गया। मीन्स उसको एक कोड का नाम दे दिया गया, जिसमें जो थे 10 लोग रखे गए थे। इन द फील्ड ऑफ साइंस, ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस like architecture, engineering, instruments of war had been the specialty of the Byzantines. Surviving Byzantine art is mostly religious. Painting in fresco, illuminated sculptures on wood panels were the specialty of Byzantine art. The Byzantine churches were famous for their interiors, which were lavishly decorated with mosaic images of Christ, the Virgin and saints, and with painted icons, that is, beautiful religious statues. The empire declined after 1453 AD when the Turks captured Constantinople. और जो बेस्टाइन थे वो किस फील्ड में अच्छे थे? साइंस, ज्योमेट्री एंड उसकी एप्लीकेशन लाइक आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट थे। उस वो मतलब कि काफ़ी स्पेशलिटी थी उनकी उन चीज़ों के रिगार्डिंग। जो आर्ट था उस टाइम क्या था? रिलीजियस था। जितने भी वो पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, स्टैचूज बनाते थे, वो रिलेटेड थे क्रिस्ट के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छी अच्छी कलाएं करते थे। फिर लास्ट में क्या हुआ? 1453 ईस्वी के बाद जो एम्पायर है वो पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मीन्स एंड हो गया एम्पायर का। मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Emergence of Ottoman Turk. Emergence means appearance of Turk. The Ottoman Turks were a nomadic tribe of Asiatic horsemen with a fearsome reputation. That means कि जो ऑटमन तुर्क थे वो नोमैडिक थे, नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते थे। बच्चे नोमैडिक होते हैं जिनका एक जगह ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। वो कौन थे? वो एक एशियाई घुड़सवार थे जो कि खाना बदोश जनजाति थी, ठीक है। खाना उनकी जाति थी, जनजाति। ऑन अप्रैल 2, 1453 AD, सुल्तान Mehmed's army of 8,000 men laid siege to the city of Constantinople. Despite a desperate last-ditch defense of the city by Christian forces, Constantinople finally fell. The Ottomans, after an almost 2-month siege on May 29, 1453 AD, the last Byzantine Emperor Constantine XI Pelagos fought bravely till the city fell in the hand of the Turks. 2 अप्रैल 1453 को 8,000 जो मैन थे, लोग थे, उन्होंने सुल्तान मेहमम ने जो सेना थी कंस्टेंटिनोपल की शहर को क्या कर लिया था? घेर लिया था। फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन फोर्सेस थे उनके द्वारा शहर को एक सख्त अंतिम खाई तक वो क्या करते रहे? उसकी रक्षा करते रहे। कंस्टेंटिनोपल आखिरकार फिर उसके बाद वो फाइनली गिर गया, फेल हो गया। 29 मई 1453 को 2 मंथ्स की घेराबंदी के बाद ऑटमन ने जो अंतिम बेस्टाइन
किंग था, सम्राट था कंस्टेंटाइन 11। पेलालोगोस ने तब तक बहादुरी से लड़ाई की जब तक शहर तुर्क के हाथ में नहीं आ गया। वो बहुत देर तक लड़ता रहा, बट तुर्कों ने क्या कर लिया, उसके शहर में कब्जा कर लिया। ऑटमन डायनेस्टी इज नेम आफ्टर द ऑटमन रूलर नेम ओस्मान आई who belonged to a Turkish tribe of Central Asia. Thus, with the fall of Constantinople to the Ottoman Turks, the Byzantine Empire perished and the Ottoman rulers began to rule over the Eastern Roman Empire. In 1453 AD, Sultan Muhammad II renamed Constantinople Istanbul. The Ottoman sultans were inspired by the Islam. जो ओटमन राजवंश का नाम उस्मान प्रथम के ओटमन शासक के नाम से पड़ा, जो कि मध्य एशिया में यानी सेंट्रल एशिया के एक तुर्की जनजाति से संबंधित थे। इस प्रकार जो कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्क के पतन के साथ बैस्टियन साम्राज्य का एम्पायर का नाश हो गया, मीन्स कि वो पूरी तरह नष्ट हो गया। और तुर्क के जो शासक थे उन्होंने रोमन साम्राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। 1453 में जो सुल्तान मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल का नाम दे दिया और ओटमन सुल्तान इस्लाम से प्रेरित थे।